Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting for day 5 in our Kalki Mujahide SSB series, the series that will ensure that you get that coveted recommended tag. This is an entire end-to-end SSB coverage course, and this course is for free. So today we would be discussing the stage 2 of SSB, because if you haven't seen the previous sessions, I would urge you to go and watch them after you have seen this session, because in the previous sessions we have comprehensively discussed कि जो screen in कैसे होना है, how to ensure that one gets screened in every time. So कई बार ऐसा होता है we get people कि वो एक बार screen in हो गए फिर अगली बार screen out हो जाते हैं. इवन कई बार कोई बंदा एक एंट्री में रिकमेंड हो चुका है एंड देन ही गेट्स स्क्रीन्ड आउट इन अदर एंट्री. सो हाउ टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लास्ट 4 days. So you can go and watch that session, previous sessions, to ensure that you get screened in every time. बट आज से जो चीज स्टार्ट हो रही है, दिस इज द कोर एसएसबी. ये जो कोर 4-day प्रोसेस ऑफ द एसएसबी है बचा हुआ, दैट एसेंशियली इंश्योर्स कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ आएंगे if at all you enter the merit list, because its marks are included in the final merit list that is prepared. So that is why the remaining classes are also very important in order to ensure that you can get to the uniform that you desire to wear so fondly. ठीक है, बिल्कुल सक्षम, you are right. ठीक है. So hi guys, those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay. And I would be helping you in this journey of SSB preparation. Yeah, the images of the NDA days only. This was used to be my ID number, so that is written there. So I belong to the 1st Battalion of the Charlie Squadron. I was an Indian Air Force cadet at the academy, and I was recommended in my first attempt from 1AFSB Dehradun. So that's a brief about me. I also appeared for JEE and was fortunate enough to get a decent rank there. But I decided to go for the academy. Okay, so moving on, today is day 5 and what is the agenda for today? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे ऑफ द रिमेनिंग. जो मैंने जैसे आपको बोला था, एसएसबी में सेलेक्ट होने के लिए यू हैव टू बी अ मिक्स ऑफ 2 प्लेयर्स, चेतेश्वर पुजारा एंड क्रिस गेल. सो अभी तक हमने क्रिस गेल वाली जो टेक्निक और अप्रोच है वो हमने अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट में लगा दी सारी, to ensure that we get screened in. कैसे एक snappily we can display बहुत ही limited time में, how we can show our maximum qualities, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया in the previous 4 days. Today we would be starting with day 5 और अब से हम जो डिस्कस करने वाले हैं, they are essentially the skill sets of a true classical batsman. तो अब से आपको चेतेश्वर पुजारा के मोड में आना है and you have to bat in such a fashion that you are able to get maximum marks. So सबसे पहले आज हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे ऑफ द स्टेज 2. देन उसके बाद आई वुड बी डिस्कसिंग द टेस्ट्स की एक ब्रॉड ओवरव्यू भी लेंगे, दैट व्हाट इज द टेस्टिंग प्रोसीजर लाइक. साइक, जीटीओ, आईओ, ये सब क्या बलाए हैं? आर दीज जस्ट अल्फाबेट सूप्स और डू दे मीन समथिंग मोर? फाइनली रिकमेंडेशन कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, कॉन्फ्रेंस, साइक, जीटीओ, इनका मार्किंग वेटेज क्या है, एंड देन थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे इन सम डेप्थ ऑफ द साइक टेस्टिंग प्रोसीजर की. जो साइक के टेस्ट हैं उनका टेस्टिंग कैसे होता है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल है. इवेंचुअली इन द फर्दर क्लासेस वी वुड लुक फॉरवर्ड टू ईच ऑफ द टेस्ट की हर एक टेस्ट में साइक के अंदर भी जो वेरियस टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड उनकी थ्योरी को भी समझने का वी वुड ट्राई टू समझाएंगे. ठीक है, ओके. सो इतना क्लियर है? इज दिस मच क्लियर कि आज के सेशन का एजेंडा क्या है, व्हाट आर द थिंग्स we are going to discuss in today's class. So एक brief overview of stage 2 and then of the various tests, then marking system of the stage 2 की कैसे आपके marks होते हैं, recommendation कैसे होता है, and finally psych testing के जो टेस्ट है उन पे एक brief overview लेंगे. So जैसा हम सब ने अभी तक देख लिया है, we have seen, I hope आप सब familiar हो चुके हैं what is the testing procedure like. तो this was the stage 1 जिसको हमने बोला था screening test. सो इसमें हमने देखा था एसेंशियली इट इज लाइक अ वॉर. इसमें भयंकर छटनी होती है. इफ 100 एस्पिरेंट्स आर अपीयरिंग फॉर एसएसबी, हार्डली 30 कैंडिडेट्स वुड मेक इन थ्रू दिस स्टेज. सो अगर ये जो पहला फिल्टर है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर जो लगता है, और इस फिल्टर से सिर्फ जितने भी छठ के कैंडिडेट्स है दे आर अलाउड टू फेस दिस एंटायर प्रोसेस. सो ये जो 3 टेस्ट है, दीज आर द एसेंशियल 3 टेस्ट
एंड इन 3 टेस्ट को फेस करने के बाद द फाइनल डे यू हैव योर कॉन्फ्रेंस, जिसके बेसिस पे फाइनल इन चारों का क्यूमुलेटिव स्कोर के बेसिस पे इट इज डिसाइडेड वेदर यू आर गोइंग टू बी रिकमेंडेड और वेदर यू आर गोइंग टू बिकम अ रिपीटर. ओके, सो रिकमेंडेड बनोगे या आगे चल के रिपीटर बनोगे, दिस इज डिसाइडेड होल सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट ऑफ द एसएसबी. सो दैट इज वन थिंग कि जो एक तरीके से ये जो फर्स्ट 2 स्टेज 1 ये स्क्रीनिंग है, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर. सो अपार्ट फ्रॉम OIR की रेटिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका जो PIQ फॉर्म आप इंटरव्यू के लिए भरोगे पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनएयर का, उसमें OIR की रेटिंग होती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सेपरेट वेटेज फॉर दिस इन द SSB मार्किंग स्कीम. सो आज अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टेस्ट देखेंगे कि इंटरव्यू क्या है ब्रॉडली, GTO ब्रॉडली क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बेसिकली क्या है, एंड देन वी वुड सी कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एंड देन वी वुड बी डिस्कसिंग कि कैसे आप इन पर्टिकुलर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन द फ्यूचर क्लासेस. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा. स्टेज 1 का रिजल्ट वाज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ योर OIR परफॉर्मेंस, जिसका 25% वेटेज था, एंड योर PPDT परफॉर्मेंस, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट की परफॉर्मेंस, जिसका 75% वेटेज था. सो उसके बेसिस पे a few of the students would be selected. They would be called as screened in candidates, और इनको फिर नए चेस्ट नंबर्स मिलेंगे. सो ओल्ड चेस्ट नंबर जो स्टेज 1 के टाइम के थे, दे वुड बी रिप्लेस्ड विद न्यू चेस्ट नंबर्स, और इसमें आपको फिर ग्रुप्स बनाए जाएंगे. यू वुड बी ग्रुप्ड अगेन. एंड अभी जब हमने देखा था स्टेज 1 के टाइम पे, स्क्रीनिंग के टाइम पे, रिपीटर्स का सेपरेट ग्रुप था, जो पहले एसएसबी में अपीयर हो चुके हैं उनका सेपरेट ग्रुप था, और जो फ्रेशर्स थे उनका सेपरेट ग्रुप था. बट अब नाउ आफ्टर स्टेज 1 इट इज अ मिक्स्ड ग्रुप. तो हो सकता है आपके ग्रुप में कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट भी हो सकता है आपके ग्रुप में कोई फ्रेशर भी हो सकता है आपके ग्रुप में कोई रिपीटर भी हो. सो इट इज अ मिक्स्ड बैग. तो इसके लिए हमें रेडी रहना होता है. ऑल्सो जो स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स होते हैं उनसे फिर एक PIQ फॉर्म भरवाया जाता है, विच इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनएयर, और इसमें फिर आपसे काफी सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, आपकी हॉबीज, एजुकेशन, पेरेंट्स बैकग्राउंड. सो ऑल ऑफ दैट इज आस्क्ड इन द PIQ फॉर्म. सो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म. सो वी वुड बी डिस्कसिंग कैसे भरना है वो फॉर्म, सो एज टू इंश्योर कि आप अपने इंटरव्यू को गाइड कर सको. बिकॉज ये जो PIQ है, दिस सर्व्स एज अ बेस फॉर योर इंटरव्यू. सो आप स्क्रीन इन हो गए, देन दिस वुड हैपन. उसके बाद फिर रेस्ट का पीरियड होता है. जिस दिन स्क्रीनिंग होगी उसके थोड़ी देर टाइम बाद यू गेट द पीरियड फॉर रेस्ट. ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स रिटायर टू द रेस्ट रूम्स. वहां पे फिर यू वुड बी टॉकिंग टू द न्यू ग्रुपमेट्स दैट यू हैव गॉट. यू कैन इंटरेक्ट विद देम. वन इंपॉर्टेंट टिप हियर इज, आप अपने ग्रुपमेट्स को कंपटीटर्स की तरह ट्रीट मत करिएगा. रादर ट्रीट देम एज योर कोलैबोरेटर्स. तो उन्हें कंपटीटर नहीं बट कोलैबोरेटर्स की तरह ट्रीट करना होगा. बिकॉज एक तो इससे होता है कि यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ देयर. सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द SSB days, because if you made a friend there and he also gets or she also gets recommended along with you, there are high chances that you would remain friends in the academy. This happened with me. So initially academy में जब तक आप होते हो, तो जो आपके शुरुआती दोस्त होते हैं, if you are not from Rimco सैनिक स्कूल टाइप, देन जो आपके ओरिजिनल वहां पे एकेडमी के शुरुआती फ्रेंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर दोस्त who have appeared in the SSB or the medicals with you. So then eventually your friend circle diversify. So this is the idea. Do not treat them as competitors. Treat them as your collaborators, the groupmates. उनके साथ चीजों को शेयर करो. And important tip again, try to develop a good rapport there. Why this good rapport helps? This helps in your GTO testing. GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जब आपको टेस्ट करता है, तो शुरुआती टेस्ट ही उनका ग्रुप डिस्कशन है और GPE है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, और इसमें योर ग्रुप डायनामिक्स आर चेक. सो अगर आपने पहले ही इवन बिफोर द GTO टेस्टिंग एक गुड रैपो इन द ग्रुप सेट कर लिया, so chances are that you would be easily able to take the leadership position during these tests. So how this happens, I would tell you in detail when we discuss these tests, but suffice it to say कि आपको शुरू में ये कोशिश करनी है कि आप ग्रुप में एक अच्छी रैपो बिल्ड कर पाओ. दूसरा, डू नॉट ट्रीट देम एज कंपटीटर्स, की ऐसा नहीं कि हर चीज उनसे छुपा रहे हैं, चुपके चुपके से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीज आपको पता है उनको नहीं बता रहे. ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ओके, सो दिस मच इज क्लियर. एनी डाउट टिल नाउ? If you have any doubt till now, please let me know. Okay, so this is about
knowing the group mates and how to behave in a group. Then जो screened out candidates होते हैं, those who are unfortunate and couldn't crack the stage 1, उनमें से जो freshers होते हैं उनको traveling allowance दिया जाता है, so उनको पैसा दे दिया जाएगा जितना उनका टिकट का होगा, और एक ब्रीफिंग दी जाती है बाय द ऑफिसर्स कि हो सकता है आप में ये जनरल शॉर्टकमिंग्स हो, एंड दे से कि we are looking for a perfect fit for the forces. So it is not a judgment on your personality, it is just that we were not able to find you suitable for a certain type of role that we are looking for, and you can work on this. Then they motivate you that many of the people who are not able to crack their SSBs did great things in life, be it Dr. Kalam, Amitabh Bachchan, Rahul Dravid and what else. So they have a set story, तो उसको सबको सुनाते हैं. Again, उसके बाद what those candidates who were screened out, my advice would be to for them would be introspect. सबसे important चीज जो आपको करनी है वो है introspect. जैसे ही SSB खत्म हुई, you were rejected, don't become a cry baby. Cry baby नहीं बनना है कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, मेरा बोर्ड में फिश मार्केट बन गई थी, unfair रहा. Just immediately after you have been rejected, just note down your experience. Because this would give you a good idea कि यार कहाँ गलती हुई. Try to understand कि यार मैंने OIR में I left a few questions, और OIR में I committed few blunders, और then write the type of questions. मैंने analogies के question में गलती करी. I was not able to solve the, let's say, sequence questions, or let's say mirror image question. So note those kind of questions that you were not able to solve. Second, सपोज पीपीडीटी में, तो अंडरस्टैंड की कहाँ गलती हुई. माई स्टोरी वॉज कंप्लीटली इररेलेवेंट टू द फोटो. राइट इट डाउन विथ पेन एंड पेपर. देन राइट की अच्छा ग्रुप डिस्कशन में आई वाजंट एबल टू मेक मीनिंगफुल इंटरजेक्शंस, और आई मेड लेस नंबर ऑफ इंटरजेक्शंस. देन राइट सपोज नरेशन में आई वाज वेरी जिटरी, आई वाज नॉट अपीयरिंग कॉन्फिडेंट, आई वाज नॉट लुकिंग इन द आई, आई वाज नॉट एबल टू लीड द डिस्कशन in the right direction. So again, rather than becoming a crybaby and cribbing and bitching about the SSB board कि ये तो बहुत rejection board है, इस selection board नहीं है, all of that, writing कोरा पे ऐसी post की ये सब बिके हुए हैं. Again, there might be a few bad apples, that doesn't mean the whole cart is upset. So rather than going for those things, introspect is the keyword if you are screened out. Okay, so जो लोग मैसेज कर रहे थे कि सर स्क्रीन आउट हो गए हैं, आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू. ठीक है, यस एम के आई कैन अंडरस्टैंड. घर वालों को लगता है कि स्क्रीन आउट होके आ गया, पहले दिन ही इतना भर के अटैची ले गया था, खाली इससे बड़े तो अटैची ही नहीं ले जाता इतनी बड़ी, पहले दिन ही निकलना था. तो सो दुनिया का काम है क्या ना, आपका काम है कर्म करना, तो कर्म करे जा, कर्म ही जहां पे फल लगे, दैट इज द बेस्ट वे. सो keep your efforts high and eventually the results will come. Okay, ठीक है. क्लास वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो क्लास वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे तो डांगी, दैट मींस जो OIR की क्लास में मैंने अप्रोच बताई थी उसको आप फॉलो करो. सो इवन इफ स्टेज 1 में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, जस्ट गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस क्लासेस ऑफ कल की. उसमें मैंने मतलब उससे डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलेगा. अगर आप इवन ऑफलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन कोचिंग्स में कहीं भी चले जाओगे, I have taught in offline, I have taught in online, so I know कि what the content they are providing. जो previous 4 days classes में पढ़ाते हैं, that is the essence. आप कहीं भी चले जाओ, हाई फाई 15-20 हजार की जो कोचिंग है वहां चले जाओ, ये ऑनलाइन जो अपना कोर्स बेचते रहते हैं उन सब के चले जाओ, वो उन सबका जो निचोड़ है वो वही है जो हमने पीछे 4 क्लासेस में डिस्कस कर लिया. ठीक है, तिरंगा की टाइमिंग सो अभी मैं बताऊंगा, उस पर भी डिस्कस करूंगा. सो आई होप ये स्टेज 1 वाला पार्ट क्लियर है. अब आ जाते हैं जो सेकेंड, एक बहुत ही आप लोगों को मतलब जिसको लेके काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है, ऑल्दो इट इज जस्ट लाइक, ये वही उत्सुकता है जो एक नव युवक को होती है रिगार्डिंग हिज बॉडी व्हेन इट इज ग्रोइंग. ठीक है, तो जैसे एक नव युवक होता है ना, वो बहुत उत्सुक रहता है कि अब मैं एडोलसेंस में आ चुका हूँ, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही है, और फिर वो एक्सप्लोर करता रहता है. ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है, इट इज यूजलेस फॉर यू, बट स्टिल वो उत्सुकता जो एक नव युवक के रहती है रिगार्डिंग हिज बॉडी, वही उत्सुकता आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को रहती है मार्किंग सिस्टम को लेके. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरेज आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बट इट इज यूजलेस फॉर यू. मतलब इन नंबरों के चक्करों में पढ़ोगे तो वही है, एसएसबी के प्रोफेसर बन जाओगे, बट ऑफिसर बनोगे ना बनोगे, दैट इज ऑलवेज डाउटफुल. ये जो काफी सारे कैंडिडेट ऑनलाइन ज्ञान बांटते रहते हैं ना कि इतने मार्क्स होते हैं, ये इन 2 ने रिकमेंड किया, 1 ने रिजेक्ट किया, तो ये होगा, ये
ये सब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उनको बोलना चाहिए, जाके ये आप मैथ्स के टाइम पे पढ़ लेते तो बेटा रिटर्न में स्कोर अच्छा हो जाता। अब एसएसबी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के फायदा नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कवरेज कि आपको ऐसा ना लगे यू आर इन टॉट समथिंग, आई एम टेलिंग यू ऑल्दो इट इज कंप्लीटली यूजलेस फॉर एन एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो एसएसबी की मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 900 मार्क्स। सो जैसे मैं 3 एंट्रीज लेके इसको क्लैरिफाई करता हूँ, एनडीए, ओटीए की एसएसबीज एंड लेट्स से आईएमए की एसएसबीज। सो एसेंशियली जो फौज का सिस्टम चला है वो ये है कि 50% वेटेज जो होगा वो आपके रिटर्न का होगा एंड 50% जो वेटेज होगा आपका एसएसबी का होगा, और इन दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे आपकी टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, और इन टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। सो सपोज रिटर्न में आपके लेट सपोज 100 मार्क्स का रिटर्न है एंड 100 मार्क्स की एसएसबी है, 100 मार्क्स एसएसबी के, 100 मार्क्स रिटर्न के। तो सपोज देयर इज अ कैंडिडेट जिसके रिटर्न में आए 60 मार्क्स एंड एसएसबी में आए उसके 50 मार्क्स, सो हिज टोटल मार्क्स वुड बी 110। देन देयर इज अनदर कैंडिडेट जिसके रिटर्न में आए 55 मार्क्स बट एसएसबी में आए उसके 65 मार्क्स, सो हिज टोटल मार्क्स वुड बिकम 65 plus 55 120 मार्क्स, सो हिज टोटल मार्क्स वुड बिकम 120। तो जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो ये 120 वाला कैंडिडेट ऑल्दो उसके रिटर्न में मार्क्स कम थे बट हिज मार्क्स इन एसएसबी आर मोर, सो ही वुड बी एट रैंक 1 एंड रैंक 2 वुड बी द वन हु इज एट 110 मार्क्स। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि क्या कैसे होता है, चाहे कोई भी एंट्री हो 50% रिटर्न का वेटेज है उसमें, 50% एसएसबी का वेटेज है। सो कैसे है, रिटर्न में हम जानते हैं, एनडीए की एंट्री में हम जानते हैं 600 नंबर का हमारा जीएटी का पेपर होता है एंड 300 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है। सो रिटर्न एनडीए में इज ऑफ 900 मार्क्स, जो एसएसबी भी है वो भी 900 मार्क्स की है। सो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है एनडीए की दैट इज फ्रॉम 1800 मार्क्स, 1800 मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट एनडीए की बनती है। ओटीए में भी नो जीके का पेपर है 100 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर है 100 मार्क्स का, सो 200 नंबर का हो गया आपका रिटर्न। अभी जो एसएसबी के 900 नंबर है दे आर स्केल्ड डाउन, इनको स्केल डाउन किया जाता है। सो हर एक कैंडिडेट का स्कोर को स्केल डाउन किया जाएगा, ये 900 वुड बी स्केल डाउन टू 200, इसको 200 पे स्केल डाउन किया जाएगा एंड दीज 200 मार्क्स वुड बी ऑफ, तो 900 में वुड बी स्केल डाउन टू 200, ठीक है। आईएमए में 100 इज ऑफ इंग्लिश, 100 इज ऑफ जीके एंड देन 100 इज ऑफ मैथ्स। सो 300 मार्क्स की आईएमए में रिटर्न है आईएमए के लिए एंड देन 300 मार्क्स के आपके एसएसबी के भी होंगे। सो दिस 900 मार्क्स वुड बी स्केल डाउन टू योर 300 मार्क्स। सो एसेंशियली अगर आपके सपोज लेट्स से यू आर गेटिंग 600 मार्क्स इन योर एसएसबी, आपके सपोज 900 में से 600 मार्क्स आ रहे हैं, सो क्या करेंगे 900 को 300 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो 600 को भी हम क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस वुड कम आउट टू बी 200। तो आपके यहाँ कितने मार्क्स इंक्लूड होंगे, ऑल्दो वहां एसएसबी में आपको 600 नंबर मिले थे बट आईएमए की जब मेरिट डिसाइड करेंगे तो वहां पे मार्क्स आपके कितने लिखे जाएंगे एसएसबी के 200। सो एसेंशियली द मार्क्स आर स्केल डाउन, ठीक है। तो ये मार्किंग सिस्टम क्लियर हुआ कि क्या है, अपने को ब्रॉडली ये ध्यान रखना है कि एसएसबी और रिटर्न का इक्वल वेटेज है इनमें। डायरेक्ट एंट्रीज के लिए अलग होता है, डायरेक्ट एंट्रीज के लिए होलसोल वेटेज ही एसएसबी मार्क्स का होता है। तो डायरेक्ट एसएसबी वाली एंट्रीज है उनमें जिनमें रिटर्न का वेटेज नहीं है उनमें डायरेक्ट एसएसबी के ही मार्क्स होते हैं, तो उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। बट कैसे ये स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन होता है, इससे एक चीज ये निकल के आती है, देखो एनडीए में तो एवरी मार्क इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इक्वली, बट एसएसबी में आप देखोगे, बट आप आगे चल के देखोगे आईएमए और ओटीए के लिए, इफ यू एनालाइज, इफ यू आर गुड विथ योर नंबर्स, यू वुड रियलाइज आईएमए और ओटीए में पर मार्क्स, मतलब एसएसबी का 1 मार्क इन एनडीए इज मच हायर, इज हैविंग मच मोर वैल्यू देन 1 मार्क ऑफ आईएमए और ओटी एंट्री, वाई बिकॉज दीज नंबर्स आर स्केल डाउन। सो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी चीजें, the numbering is very, like you can say, a kind of stricter on the stricter side for IMA and OTA. But again, you don't have to worry with such minute details. You just have to have a broad idea कि SSB 900 नंबर की होती है और IMA OTA वालों के लिए नंबर स्केल डाउन हो जाता है to ensure that parity है between the written and the SSB scale.
अब ये जो 900 नंबर है ये भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सो हमने अभी पीछे देखा था द प्रोसीजर दैट दीज 4 थिंग्स आर गोइंग टू बी द टेस्ट 4-डे टेस्ट मैच जो चेतेश्वर पुजारा खेलेगा, उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये सब चीजें उसको खेलनी है। सो ये जो 900 मार्क्स हैं ये भी इसी तरीके से डिवाइडेड है। सो व्हाट वर द टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू फेस? सबसे पहले वी सॉ देयर इज द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, then we saw there would be the group testing officer, then we saw there would be the interviewing officer, and finally we saw that there would be the conference. So चारों का इक्वली वेटेज होता है, तो 900 डिवाइडेड बाय 4 we would be getting 225. ओके, सो हर एक टेस्ट का साइक का कितना वेटेज होगा मार्क्स में? 225 मार्क्स। जीटीओ का कितना वेटेज होगा? 225 मार्क्स। इंटरव्यूइंग ऑफिसर का कितना होगा? 225 मार्क्स। एंड कॉन्फ्रेंस का कितना होगा? 225 मार्क्स। सो हर एक स्टेज का 225 मार्क्स है। अब जैसा हम सबको पता है कि जो साइक, जीटीओ और इंटरव्यू है दे हैपेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं दे हैपन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो क्या होता है एसेंशियली, इन तीनों के बाद कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें सारे एसेसर्स होते हैं। साइक में सिर्फ साइक होता है, जीटीओ में सिर्फ जीटीओ ऑफिसर बैठा होता है, आईओ में सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा होता है। कॉन्फ्रेंस के दिन ये सारे एसेसर्स अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट बैठे होते हैं और आपको बुलाया जाता है। सो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्फ्रेंस के 225 नंबर कैसे डिसाइड होते हैं वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई आपसे बोले साइक इंपॉर्टेंट है, जीटीओ नहीं है, आईओ नहीं है, जीटीओ ही फट्टा बल्ली ही आपने कर लिया तो रिकमेंड हो जाओगे, ऐसा नहीं। ऑल ऑफ देम आर हैविंग इक्वल वेटेजेस। ओके ओके, सो दिस इज क्लियर। सो जैसा हमने बोला ईच ऑफ द एसेसर इज हैविंग 225 मार्क्स। अब क्या है, एक थ्रेशोल्ड है दैट इफ यू आर गेटिंग मोर देन 40% मार्क्स, हर एक एसेसर अगर आपको 40% से ज्यादा मार्क्स दे रहा है दैट मींस ही इज डायरेक्टली रिकमेंडिंग यू विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। सो अगर कोई भी आपको एसेसर है वो अपने 225 मार्क्स में से 40% या उससे ऊपर नंबर आपको दे रहा है, वो एक तरीके से क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि आपकी उसकी तरफ से यू आर अ suitable candidate and he is recommending you without ifs and buts। ठीक है, तो दैट इज अगर हर एक एसेसर ने आपको 90 नंबर दे दिए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने 90 दे दिया मान लो, जीटीओ ने 90 दे दिया मान लो, और साइक ने 90 दे दिया, सो दैट इज योर 270 मार्क्स। सो जिस भी कैंडिडेट के 270 और उससे ज्यादा मार्क्स आ चुके हैं बिफोर द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो वो ऑलरेडी रिकमेंडेड समझ लो उसको, ऑलरेडी वो रिकमेंडेड कैंडिडेट है। जिसके भी 250 से ज्यादा नंबर आ चुके हैं ही इज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो उसकी जो कॉन्फ्रेंस होगी वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होगी। उसमें उससे आपको कौन सा फल पसंद है, क्या आप आम खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, उस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इफ यू आर गेटिंग 40% in each of the assessor's assessment then you are a recommended candidate, conference would be a cakewalk for you। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि 40% से ऊपर अगर आपका मार्क्स आ रहा है देन यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर असेसर। बट ये मार्क्स कैसे देते हैं, व्हाट इज द मार्किंग सिस्टम? सो एक टेक्निकल एक फंडा जो वो फॉलो करते हैं दैट इज द टिक सिस्टम और द टिक एंड मार्क सिस्टम। उसमें एसेंशियली वो नंबर नहीं देते आपको, दे डोंट गिव यू अ नंबर, नंबर्स आर डिसाइडेड यूजुअली ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के आसपास वो अपना नंबर डिसाइड करते हैं कितना देना है। ऑल्सो दीज नंबर्स आर रिटन विद पेंसिल इनिशियली, दे कैन इरेज एंड चेंज देम ऑन द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने लिखे भी होते हैं तो। एसेंशियली व्हाट दे डू इज दे फॉलो अ टिक सिस्टम। सपोज इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, सपोज अ इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज असेसिंग यू, उसने इंटरव्यू लिया, फिर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू ही वुड मेक अप हिज माइंड कि ये कैसा कैंडिडेट था। सो इवन इन रिकमेंडेड देयर इज ग्रेडेशन, 1 to 5 तक ग्रेडेशन होता है। देन देयर आर 3 ग्रेड्स फॉर डाउटफुल कैंडिडेट, एंड देन देयर इज 2 कैटेगरीज फॉर जो आउटराइटली रिजेक्ट कैंडिडेट करना होता है, जिनको आउटराइटली रिजेक्ट करना होता है उनकी एक अलग ग्रेडिंग होती है। सो सपोज ही कंडक्ट्स योर इंटरव्यू एंड देन ही रियलाइजेस कि यार बंदा टॉप नॉच है, डेमो टाइप है, इसको रिकमेंड करना है। So usually what I have seen is majority of the recommendations 4 के अराउंड हो जाते हैं। 4, 5 is the general case. Rarely candidates go up to 3. मतलब 3 is usually very high. 3 I have rarely seen, but 4 and 5 के around usually people the assessors give if they really want a candidate to win. 4 is the most
कॉमन वन वेयर इफ दे वांट अ कैंडिडेट दे गिव देम 4 वाले पे वो टिक कर देंगे अपना कि ये 4 लेवल का, एंड देन दे कैन गिव दैट कैंडिडेट एनी मार्क बिटवीन लोअर लिमिट इसकी 135 रहेगी और अपर लिमिट 156, तो वो 150 भी दे सकते हैं आपको, देन वो आपको 138 भी दे सकते हैं, वो आपको 140 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दिस द मार्क्स इन दिस रेंज इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेसर। ठीक है, तो ये इसके डिस्क्रिप्शन पे रहता है कि वो इस रेंज के अंदर कितना मार्क्स देना चाहता है, बट ही हैज टू जस्टिफाई कि वो ये रेटिंग क्यों दे रहा है आपको। ठीक है, इस रेंज के अंदर वट एवर ही इज गिवन ही डजंट हैव टू जस्टिफाई और शी डजंट हैव टू जस्टिफाई। देन सो दीज आर द रिकमेंडेड कि कितनी रेंज में दे सकते हैं। तो रिकमेंड होने के लिए मिनिमम एक एसेसर जो आपको मार्क्स देता है दैट इज 112 मार्क्स देता है इफ यू इज श्योर शॉट रिकमेंडिंग यू। अगर वो श्योर शॉट आपको रिकमेंड कर रहा है देन मिनिमम वो 112 मार्क्स देगा। डाउटफुल कैंडिडेट्स आर दोस्त जिसको वो चाहता तो है रिकमेंड करना बट एक दो चीजों पे उसको थोड़ा इश्यू आ रहा है, सो ही वुड मार्क इट एज डाउटफुल ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी, मतलब डाउटफुल ऑफ द लीस्ट कैटेगरी की इसको बहुत ज्यादा चांसेस रिकमेंड हो जाए बट थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो दैट इज 90 मार्क्स उसका वो मिनिमम होता है 90, इसीलिए 90 पे इफ यू आर देन ऑल्सो देयर इज अ हाई चांस दैट यू वुड गेट रिकमेंडेड प्रोवाइडेड दैट असेसमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड। ओके okay, so this is clear. yes Mio, that is very much possible. Mio कह रहे हैं कि FCAT में अगर हमारे just passing marks cross हो रहे हैं, so is there a chance that we would get recommended? Yes, you can get recommended provided you perform well in your SSB. okay, because काफी students merit out भी हो जाते हैं but if you perform well in your SSBs then there is a chance that you can get in. okay, so this is about 111 and 90 वाला. So bare minimum यहाँ पे अगर आपको 90 आ रहा है doubtful में then also there is a chance that you would get recommended. okay, so this is clear. अब अगर उसका 9 रेटिंग दे दी that means वो outrightly आपको रिजेक्ट कर रहा है. so अगर ऐसा हो गया है then there is a very less chance that you would get recommended. अगर एक भी एसेसर ने आपको इन दो कैटेगरीज में डाल दिया तो बहुत ही कम चांस है कि आप रिकमेंड होगे. ठीक है, so 9 और 10 नहीं करना चाहिए. Essentially हमें क्या टारगेट करना है, these all marks are not for us, they are for assessors, so we don't have to fall in this trap of analyzing the marks. What we must focus upon is giving our best and leaving the rest. okay, so best अगर मतलब ये वही बात हो गई कि विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहा है तो अगर स्कोर कार्ड कोई देखता रह जाएगा तो फिर वो बैटिंग पे फोकस कैसे करेगा. तो ये सब जस्ट इसलिए बताया फॉर द सेक ऑफ कवरेज कि आप बोलो और लोग बताते हैं आप नहीं बता रहे, आपको नहीं पता है एसएसबी का. इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ. अगेन मैंने पहले भी ये डिस्क्लेमर बोला, इट इज यूजलेस फॉर एन एस्पिरेंट. मतलब आपको हाँ ये याद रखना चाहिए कि बॉल पार्क फिगर कितना है, मतलब आपको बहुत हाई स्कोर नहीं करना पड़ता है. इवन इफ यू गेट 40% फ्रॉम ईच एसेसर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस. ठीक है, रंजना आपको आपके मार्क्स पता चलते हैं आफ्टर द एंटायर प्रोसेस इज ओवर. जब एसएसबी कंप्लीट हो जाती है और फाइनल मार्कशीट आती है देन यू गेट टू नो योर मार्क्स. ओके, ठीक है. सो दिस इज द टिक मार्क सिस्टम. अब इसको और समझते हैं. तो तीनों असेसमेंट हो गए. जीटीओ ने असेस कर लिया आपको, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने असेस कर लिया आपको, साइक ने असेस कर लिया. तो तीनों ने अपने इंडिविजुअल असेसमेंट किया. अब उसके बाद ये लोग मिलेंगे कॉन्फ्रेंस में. सो यूजुअली जो इन्होंने अभी तक नंबर दिए होंगे वो कच्चे नंबर होंगे. सो एसेंशियली वो टिक्स मारे होंगे उन्होंने, उस रेंज में एक बॉल पार्क सोचा होगा उन्होंने. सो कॉन्फ्रेंस में अब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक आप आउटराइटली रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, एक कैटेगरी हो सकती है आउटराइटली आप रिजेक्टेड कैंडिडेट हो, एक कैटेगरी है कि आप बॉर्डर लाइन केस हो, डाउटफुल केस हो. ओके, सो 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. रिकमेंडेड कैंडिडेट कौन होंगे? रिकमेंडेड कैंडिडेट वो होंगे जिनको सीधे ही 270 प्लस से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं. सो सपोज तीनों एसेसर्स ने आपको 90 90 90 दिए हुए हैं. सो 270 आपको वैसे ही मिल रहा है. सो इट इज अ श्योर साइन कि आपको तीनों ने रिकमेंड कर दिया है. अब सपोज और भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. सपोज साइक ने आपको 90 रेट किया, जीटीओ ने भी 90 किया, आईओ ने भी 90 किया, देन 80 आपको सपोज आईओ ने आपको डाउटफुल में काफी नीचे रखा बट जीटीओ ने आपको रिकमेंडेड कर दिया और साइक ने आपको रिकमेंड कर दिया. सिमिलरली यहाँ साइक ने आपको रिकमेंड कर दिया बट और वो भी काफी अच्छे मार्क्स के साथ, बट इन दोनों ने आपको डाउटफुल में रखा है.
सो असेंशियली व्हाट आर द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस रिकमेंड होने का? एक पॉसिबिलिटी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है दैट इज तीनों ने आपको रिकमेंड कर दिया। देन सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो आपको रिकमेंड कर रहे हो, एक आपको डाउटफुल रख रहा हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर एक आपको रिकमेंड कर रहा हो और दो आपको डाउटफुल रख रहा हो, तो इन तीनों केसेस में आप रिकमेंड हो सकते हैं। सो ऐसा यहां से हमें क्या लर्निंग निकालनी है? व्हाट इज द लर्निंग दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर इज वन टेस्ट डजंट डिटरमाइन दैट वेदर वी आर गोइंग टू रिकमेंड और नॉट। वो स्टेज 1 में स्क्रीनिंग में होता था जब क्रिस गेल बनना पड़ेगा कि हर बॉल पे छक्का मारना है। यहाँ अपने को चेतेश्वर पुजारा बनना है, सो वी हैव टू प्ले ईच बॉल ऑन इट्स मेरिट। यानी इट इज नॉट असेंशियल फॉर यू कि आप हर एक टेस्ट को एस करें। अगर आपका एक टेस्ट खराब भी चला जाता है, डू नॉट वरी, बिकॉज हर एक जो असेसर है वो ही वुड असेस यू एट द एंड ऑफ द एंटायर बैटरी ऑफ टेस्ट। सो ओवरऑल इंप्रेशन आपने कैसा छोड़ा इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे, जीटीओ पे एंड साइक पे, दैट वुड डिटरमाइन कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। ठीक है, ओके, सो दिस मच आई होप इज क्लियर दैट इट इज द एंटायर परफॉर्मेंस दैट इज एट द एंड ऑफ द बैटरी ऑफ टेस्ट आपका कैसा इंप्रेशन आ रहा है, दैट विल डिटरमाइन कि आपकी परफॉर्मेंस या व्हाट वुड बी द मार्क्स दैट यू वुड बी गेटिंग। सो टेक अवे यहाँ पे यही है कि one test is not going to decide your performance. Also, even one assessor alone wouldn't be able to recommend you or reject you. So again, take the process in its entirety. वो 4 days का जो process है उसको as a complete package लेना है, और एक दो टेस्ट अगर ऊपर नीचे भी हो जाए, you shouldn't lose heart. So that is the core learning that one has to derive from this. Because 270 plus marks चाहिए before conference हमें, if we are to be a sure shot candidate of recommendation. डाउटफुल कैंडिडेट, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स वो कौन होते हैं? जिनका एकदम ही 240 से कम आ रहा होता है। सो सपोज एक ने उसे बहुत ही लो मार्क्स दे दिए, जैसे 80 80 80 तीनों ने दे दिए। सो 80 80 80 अगर तीनों ने दे दिया तो सबने उसको सेकंड कैटेगरी का डाउटफुल बना दिया। सो अगेन दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर किसी ने भी 80 से कम दे दिया उसको, एक ने भी रिजेक्ट कर दिया उसे, दो ने डाउटफुल रखा है, becomes difficult to select such a candidate. या तो तीनों ने लो कैटेगरी का डाउटफुल रखा, अगेन becomes difficult, या एक ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, दो ने डाउटफुल रखा, या एक ने डाउटफुल रखा, दो ने रिजेक्ट कर दिया, ऑल दीज केसेस। तो अगर आपका स्कोर 240 से कम बन रहा है, कंबाइंड टोटल बिफोर कॉन्फ्रेंस इज बीइंग लेस देन 240, सो बेयर मिनिमम इज कि तीनों कैंडिडेट्स, तीनों एसेसर्स ने आपको 80 80 80 पे रखा हो। सो तीनों ने अगर आपको डाउटफुल ऑफ द सेकंड कैटेगरी रखा हो, then there is a very less chance that you would get recommended, but still there is a possibility. पर अगर तीनों ने आपको वर्स्ट कैटेगरी का डाउटफुल कैंडिडेट रख दिया, और then you are not going to be considered during the conference. ठीक है, so you are then a outright case for rejection. तो ये जो outrightly recommended होते हैं और जो outrightly rejected होती है, इनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है that is very smooth. मतलब उनसे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, जस्ट प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती है एंड देन द रिजल्ट इज गिवन। ये जो डाउटफुल या बॉर्डरलाइन केस होते हैं, दे आर दोस कैंडिडेट्स जिनका मार्क होता है 240 से 270 के बीच का। तो 240 से 270 के बीच में उनके मार्क्स होते हैं, और फिर इन पे काफी ज्यादा इलेबोरेट डिस्कशन होता है कॉन्फ्रेंस में। क्या डिस्कशन होता है? सपोज द सिचुएशन वाज कि एक एसेसर इसको रिकमेंड कर रहा था एंड दो एसेसर्स थे जिन्होंने इसको डाउटफुल माना था। सो ही वुड गिव हिज रीजंस व्हाई ही इज रिकमेंडिंग हिम और हर। देन ये जो दो डाउटफुल थे, दे वुड एक्सप्रेस देयर एप्रीहेंशंस कि उनको ये लगता है। सो सपोज ये डाउटफुल वाला साइक कहता है कि यार इसमें मुझे लगता है कि ही डजंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ही इज नॉट एबल टू कोहेरेंटली पुट हिज आइडियाज ऑन पेपर। जीटीओ भी सेम बात बोलता है कि यार मुझे भी यही लगा ग्रुप डिस्कशन जीपीई में कि ये अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। सो इंटरव्यू वाला बोलेगा कि यार मुझे ऐसा लगा अपने असेसमेंट में इंटरव्यू के टाइम, इफ गिवन टाइम, तो अगर उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने का टाइम दिया जाए, देन ही कैन इजीली, इफ ही इज नॉट अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, देन ही कैन एक्सप्रेस। तो हो सकता है साइक के टाइम उस पर टाइम का प्रेशर हो, इसलिए वो कोहेरेंटली आइडियाज को पुट ना कर पाया, और हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में इट वाज द इंटिमिडेटिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड जो होगा उस समय, ही वुड से कि अच्छा चलो डाउटफुल कैंडिडेट है, इसको बुलाते हैं। फिर दे वुड कॉल यू आफ्टर सम डेलिब्रेशन। तो जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फ्रेंस से पहले बाहर बहुत देर बैठाया जाता है,
दे शुड लाइक थिंक दैट माइट बी द केस दैट दे आर द बॉर्डर लाइन कैंडिडेट। फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर उनका एक यहाँ पे एकदम दोबारा से इंटरव्यू टाइप का लिया जाता है। दे ट्राई टू रीस्टैब्लिश कि यार वो जो क्वालिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटी जिसपे हमें डाउट था, वेदर ही इज हैविंग दैट क्वालिटी और नॉट। सो आपके लिए यहाँ पे टेक अवे क्या है, इफ यू आर वेटिंग आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर सम टाइम, 10 मिनट के करीब आपको या 7-8 मिनट बैठा दिया है बाहर, देन बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आंसर इनसाइड, बिकॉज अगेन दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। ऑल्सो उस समय आपने पक्का कर लेना चाहिए माइंड में कि अच्छा मेरा ये वाला टेस्ट अच्छा नहीं गया था और हो सकता है मेरे को इस क्वालिटी पे वो लोग थोड़े डाउटफुल हो। मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डिस्प्ले दैट क्वालिटी इन द कॉन्फ्रेंस। सो दिस वुड एंश्योर दैट यू दे गिव यू ग्रेट मार्क्स। सो कॉन्फ्रेंस के भी 225 मार्क्स हैं, एज वी नो कॉन्फ्रेंस इज अगेन हैविंग 225 मार्क्स। So then they would give you great marks here. They may also revise their total initial marks that they have awarded, and based on that you might get recommended. Okay. So important चीज यहाँ पे टेक अवे एक और ये निकलता है कि आपको अगर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर ज्यादा देर वेट कराया गया, make sure ensure that whatever answers you are giving inside the conference hall are reflecting your best officer like qualities, and try to satisfy them that the quality on which they are apprehensive about you can be worked upon in the future. Okay, so that we will discuss in detail ki conference mein kya hota hai. The idea right now was to just to give you a of what this marking system all about, जो ये इतना ज्यादा spread किया जाता है, what is this. ठीक है, okay, so इतने में किसी को कोई डाउट है? If anybody is having any doubt till now, please ask. Also, I would urge all the students who watch these classes to please share them as well, because the only sustenance that we get out of this series is we are not charging you anything for this series. So the only thing that can help us is to reach all the students who are appearing for their SSBs, because you don't have to waste your money. मतलब आपको 20-30 हजार रुपए खर्च करके SSB courses की लेने की जरूरत नहीं है. You can just join the channel and spread the word, so that maximum students can benefit, and that would be the, because I know most of you are not Muft course. Okay, so I guess this much is clear. If you have any doubt now, please ask. Also a quick announcement for you, आप में से जो aspirants written की भी simultaneously तैयारी कर रहे हैं, those of you who are also simultaneously preparing for the written, congratulations, Captain Tiranga is coming back again. So जिन लोगों को भी written exam को लेके, तो जैसे इस सीरीज में हम comprehensively एसएसबी को कवर कर रहे हैं, मतलब ये सीरीज आपने देख ली तो फिर एसएसबी के लिए कुछ नहीं देखना। सेम चीज इज विद कैप्टन तिरंगा। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे नो अबाउट कैप्टन तिरंगा जीके का मसिया, बीट योर एनडीए, बीट योर सीडीएस, बीट योर सीएपीएफ। इनका जो जीके का पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, चाहे अदर जीके एस्पेक्ट्स हो, उन सभी को सिर्फ सवाल जवाब नहीं। आजकल मैं क्या देखता हूं कि ये जितने भी चैनल्स हैं फ्री में जो कंटेंट देते हैं, इवन पेड क्लास में, वो क्या सिर्फ आपको एमसीक्यू खिलाते हैं, मतलब केबीसी खेलो और अपने व्यूज बनाओ। दैट इज कंप्लीटली यूजलेस फॉर यू। वाई? जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो केबीसी खेल के क्या करोगे? rather than solving 20,000 questions, it is better to just study 20 topics. I have always believed 80% of the paper comes from 20% of the topics. So why not strengthen these 20% topics comprehensively? उन टॉपिक्स को पढ़ लें, कोर कॉन्सेप्ट उनका समझ ले, ताकि इतना सारा टाइम वेस्ट है फालतू की जो नौटंकी होती है, 10,000 क्वेश्चन कर लो, 20,000 क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, दैट शोज टू थिंग्स। एक, टीचर को इंटरेस्ट नहीं है आपको पढ़ाने में, दूसरा, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिकॉज अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 2+2 पूछूं या 3+2 पूछूं, अगर आपको ऐड करना आ गया, यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो अगेन स्टे अवेयर। ये भी मार्केट में आजकल काफी ज्यादा आप लोगों को बनाया जा रहा है कि ये कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हमारे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगेन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट इज फॉर व्यूज। उनको व्यूज चाहिए और अपने कोर्स बेचने हैं, सो इसलिए वो सब करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो, उसको कंसेप्चुअली समझो, कोर कॉन्सेप्ट समझो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस के, इंग्लिश के, कोर कॉन्सेप्ट समझो एंड स्टडी देम। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सो हम तिरंगा में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे, बट कब करेंगे? जब एक बार हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हो और एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे हम, तब हमें बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी कि अच्छा हम कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हैं,
तो आप क्वेश्चन हम इजीली खुद से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन रटाना इज जस्ट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मगिंग अप दैट एनीबॉडी कैन डू, कि ये 10 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन की पीडीएफ याद करके चले जाओ, 300 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, इससे ही क्वेश्चन आएंगे। अगेन दे आर स्पून फीडिंग यू, डोंट बिकम डिपेंडेंट, बिकम आत्मनिर्भर। सो उसके लिए कि कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, फिर आप भी क्वेश्चंस बना पाएंगे। सो दिस सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th February मंडे। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि इफ यू रियली वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू टू इट्स लॉजिकल एंड, मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएं, सो प्लीज शेयर द मैसेज, शेयर इट टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स दैट दिस सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 20th से हम तिरंगा को स्टार्ट करेंगे रात को 9 बजे। सो पोल लिया था मैंने रिगार्डिंग द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ यू सेड कि हम 9 PM पे करते हैं। सो क्योंकि सर 8 PM पे हम 8 PM खोल के बैठे होते हैं, तो 8 PM नहीं 9 PM पे क्लास लगाइए। तो मैंने भी कहा ठीक है 8 PM पे आप 8 PM करो अपना, और 9 PM पे आओ पूरे मूड में क्लास में, ठीक है। तो 9 PM इज द टाइम फॉर द क्लास। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। एसएसबी को लेके हिंदी मीडियम नहीं, जस्ट यार आई वुड अर्ज यू टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, मतलब एज हार्श एज इट में साउंड, एसएसबी में इफ यू हैव गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड यू आर हैविंग कॉमन सेंस, मतलब अगर मैं 2 कोर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं एसएसबी में, अगर मैं बोलूं कि 2 चीजें जो आपको इंश्योर कर सकती हैं आप रिकमेंड हो, पहली चीज होनी चाहिए इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड सेकेंड इज इफ यू हैव बेसिक कॉमन सेंस, then you are going to get recommended। मतलब एकदम अगर मैं बहुत ही क्रूड भाषा में बोलूं, so if you have these 2 things then you would get recommended, ठीक है। तिरंगा सीएपीएफ के भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेगा, सीडीएस के भी करेगा, एनडीए के भी करेगा, और इसमें जो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे वो तीनों ही एग्जाम कैटेगरीज के करेंगे, ताकि यू आर रेडी फॉर द रियल फाइट। और क्योंकि तीनों देखो, मैंने इसमें एफकैट को इसलिए नहीं मिलाया बिकॉज एफकैट की जीके इज वेरी वेरी डिफरेंट। सो इन तीनों की कॉम्प्रिहेंसिवली जीके कवर करेगा, ऑल्सो इनके हम पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप मतलब एकदम रेडी हो फॉर द बैटल। ऑल्सो तीनों में क्वेश्चंस रिसाइकिल होते रहते हैं, इसका क्वेश्चन इधर, इसका क्वेश्चन इधर। सो अगेन यू वुड बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन इफ यू हैव अटेंडेड तिरंगा की क्लासेस। बट अगेन आई वुड सी फॉर 1 वीक कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। इफ देयर इज गुड रिस्पॉन्स देन आई वुड कंटिन्यू, अदरवाइज वी वुडंट बी कंटिन्यूइंग दिस बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट सच अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज एंड इट इज फॉर फ्री, मतलब एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा। सो तभी कंटिन्यू इसको कर पाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट देंगे। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो वर्दीशाला के चैनल है उनको जाके ज्वाइन कर लीजिए, और ये क्लास का लिंक जैसे ही मैं शेयर करूंगा वहां पे इसके मैसेज को सब तक आपको स्प्रेड करना है, ठीक है। ओके ठीक है। नहीं, तिरंगा अर्ली मॉर्निंग में हम ये सुबह जो 8 बजे का स्लॉट है, सुबह 8 बजे हम जीके एसएसबी की, मुजाहिदे एसएसबी कल की करते हैं, एंड तिरंगा कैप्टन तिरंगा वुड बी हैपनिंग इन द इवनिंग 9 PM, ठीक है। बिल्कुल नंगा होके नहाऊंगा, तिरंगा को फैलाऊंगा आकृति। सो नंगा होके नहाऊंगा, तिरंगा को फैलाऊंगा, इस तरीके का मोटिवेशन आपको दिखाना है, ठीक है। और जो जो शेयर करेंगे वो मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजना टेलीग्राम पे। जिनने सीरीज को शेयर किया है प्लीज सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। Those who have shared the series in various groups or as WhatsApp, Instagram status, they would get a special gift from my side. I would personally interact with them and like उनको अगर कोई particular query है तो Google Meets पे we would be discussing that. So जिन्होंने भी widely share किया होगा, मतलब जिन्होंने large groups में या WhatsApp status जहाँ पे ज्यादा लोगों ने देखा होगा या Instagram पे, just send me the screenshots and then we would take the initiative forward. Okay. ओके योगेश, मैं उसको कम्युनिटी टैब पे लगा देता हूं। ओके ठीक है, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अब आ जाते हैं। जो अपना टाइम आ चुका है चेतेश्वर पुजारा बनने का, तो 4 डे टेस्ट मैच खेलना है। सो असेंशियली जो अब कोर एसएसबी है, जो इसमें आपको पूरे 4 दिन बचे हुए रहना है, उसका जो पहला टेस्टिंग प्रोसीजर होता है दैट इज द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये असेंशियली क्या चीज चेक करती है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड चेक करने की कोशिश करती है कि सामने सामने तो आप मीठी मीठी बातें बोल रहे हो, बट दिमाग में क्या चलता है आपके, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस। वो जो गट्स इंस्टिंक्ट की हमने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बोला था ना, क्वालिटीज ऑफ द हेड, क्वालिटीज ऑफ द हार्ट, क्वालिटीज ऑफ द गट एंड क्वालिटीज ऑफ द लिम्ब। साइक में एसेंशियली जो टेस्ट हो रही होती है, दे आर क्वालिटीज ऑफ योर हेड एंड क्वालिटीज ऑफ योर गट।
वो आप सबकॉन्शियसली क्या सोचते हो? क्योंकि हमने एक और चीज देखी थी, दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैव टू बी कंसिस्टेंटली शोन, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस तीनों जगह पे आने चाहिए, कर्म में, मन में और वचन में, ठीक है। तो तीनों जगहों पे ये क्वालिटीज कंसिस्टेंटली आनी चाहिए। सो ये जो थॉट वाला पार्ट है और वर्ड वाला पार्ट है, इस पे ये काफी कॉन्शियसली साइक टेस्टिंग में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आपके इनर एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड में किसी चीज को लेके, सपोज आप बोल रहे हो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन की पोजीशन इंप्रूव होनी चाहिए, बट मन में आपके बहुत ही रिग्रेसिव फैक्ट्स है कि लड़की को बुरखे में रहना चाहिए हमेशा, इवन अगेंस्ट हर ओन विश। आपके विचार है कि लड़की से डाउरी लेनी चाहिए, लड़की को बाहर वर्क नहीं करना चाहिए, बट उसमें आप पेपर में लिख रहे हो कि जब बोल रहे हो कि नहीं नहीं विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, दोनों की पोजीशन इक्वल है। तो जो भी आपके अंदर के विचार है उनको मैनिफेस्ट करवाना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का लक्ष्य रहता है। ये कैसे मैनिफेस्ट की जाती है? देखो, सोच के झूठ बोलना बहुत आसान होता है। देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल जस्ट लाइक दिस गाय हु कैन एक्चुअली मैनिपुलेट देयर सबकॉन्शियस माइंड। तो सिंस 99% ऑफ द पीपल आर नॉट एट दिस लेवल, सो इट वर्क्स वेल। बिकॉज अगर आप पे टाइम का प्रेशर लगाओ, इफ यू पुट स्ट्रिंजेंट टाइमिंग्स, कि एक टाइम का प्रेशर लगाते हो कि आपको 10 सेकंड के अंदर करना है, तो आपके जो भी अंदरूनी विचार है वो सारे अपने आप एक्सप्रेस हो जाते हैं। सो इट इज अनलेस यू आर दिस गाय। कोई इसका मुझे कमेंट करके नाम बता सकता है हु इज दिस गाय? ओके, ठीक है। नहीं, ओंकार प्रचंड स्टार्ट होगी करंट अफेयर्स के, और डोंट वरी, बस आप जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उन पे पढ़ो, जैसी प्रचंड आएगी उसमें सारा करंट अफेयर्स हो जाएगा एंड यू वुड बी गिवन एम्पल टाइम टू रिवाइज। व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज जस्ट शेयर द क्लासेस एंड अटेंड अटेंटिवली व्हाटएवर इज हैपनिंग, ठीक है। ओके, सो बिल्कुल जस्ट चलेगा वो जो आप बोल रहे हो, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दैट इज अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि आपके सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करना इसका लक्ष्य है। और प्रेशर कैसे बनाया जाएगा? प्रेशर वुड बी थ्रू स्ट्रिंजेंट टाइमिंग, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपसे रिस्पॉन्स ले जाएगा, ताकि यू आर नॉट गिवन एनफ टाइम टू थिंक एंड मैनिपुलेट योर थॉट्स। जो भी दिमाग में आया उसको उगलवाना ही इसका टारगेट है। फिर इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रीफ करेगा जो साइकोलॉजिस्ट होगा उस बोर्ड में, ही वुड गिव यू अ ब्रीफ ऑफ द वेरियस टेस्ट, कि वेरियस टेस्ट क्या है, जो मैं अभी आपको ब्रीफ दूंगा। और फिर इन फ्यूचर क्लासेस हर एक टेस्ट को हम अलग अलग से पकड़ेंगे, उस पर डीप डाइव करेंगे, जैसे हमने OIR PPTT भी की थी, और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। सो अगेन इट वुड अगेन बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ईच टेस्ट। सबसे पहले ब्रीफिंग होगी, तो मैं अभी आपको ब्रीफिंग बताऊंगा हर एक टेस्ट की। देन आपको हर एक टेस्ट का एक फैमिलराइजेशन सैंपल दिखाया जाएगा कि अच्छा ऐसा चीज होगी इसमें, वो मैं भी दिखाऊंगा अभी वाले सेशन में। और फिर उसके बाद वेरियस टेस्ट जो कंडक्ट होंगे उसमें अल्टीमेट हमें क्या याद करना है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में? ब्रॉड प्रिंसिपल। ब्रॉड प्रिंसिपल इज आपका इसमें सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस चेक हो रहा है वाया पुटिंग यू अंडर स्ट्रिंजेंट टाइमिंग कंडीशंस। तो यहां से लर्निंग क्या निकलती है कि हमें एक्सप्रेसिव होना है इन आवर आंसर्स, वी हैव टू बी एक्सप्रेसिव। अपने थॉट्स को हिंडर नहीं करना है या फिल्टर नहीं करना है, अनफिल्टर्ड अपने थॉट्स को प्रोसेस करना। अब इसका मतलब नहीं कि मन में गाली आई तो गाली लिख दी, या कोई भद्दी बात आई तो वो लिख दी। ये आइडियाज कहां से आएंगे? जो मैंने आपको सक्सेस डायरी बनाने को कहा था, जिन्होंने शुरू से क्लासेस दी हैं, मैंने बोला था सक्सेस डायरी बनाने के लिए, फ्रॉम दैट विल नाउ कम इनटू यूज। बिकॉज एक बार आप SSB में जब आपको शाम का टाइम भी मिलता है वहां सेंटर में, जस्ट गो थ्रू योर सक्सेस डायरी एंड रीड द वेरियस इंसिडेंट्स, जो आपने उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स लिखे होंगे, जस्ट रीड देम। फिर क्या होगा उससे एडवांटेज, जब आपको कोई वर्ड दिखेगा आप तुरंत ही कनेक्ट कर पाओगे किसी इंसिडेंट से। सो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ OLQs ओनली, मतलब आपको OLQs के बारे में भी नहीं सोचना पड़ेगा। You would just be able to, क्योंकि वो आपका lived experience है, you would be able to think of that incident quickly and then you would be able to put it to paper. So एक तो टाइम सेव होगा इसमें, you wouldn't be, एक तरीके से ये हैक है, provided you have done enough practice. So इसलिए साइक में आप काफी अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए इट इज जरूरी कि आपने वो सक्सेस डायरी अच्छे से मेंटेन की हो, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। बेसिक इतना फंडा क्लियर हुआ, दिस मच फंडा इज क्लियर कि क्या होने वाला है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट आपके पास आएगा, वो आपको वेलकम करेगा, बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। देन ही वुड से कि नाउ वी वुड बी अंडरगोइंग अ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर,
और हाँ, आजकल इफ द रूमर मिल इज टू बी बिलीव, इफ द ग्रेप वाइन इज टू बी बिलीव, ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग माइट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सीएपीएफ एग्जाम। सो ये भी अफवाह आजकल काफी ज्यादा गर्म है, बट अगेन इट इज ऑल एट द कंसेप्चुअल स्टेज, तो अभी तो नहीं होने वाला, फ्यूचर में कभी हुआ तो दैट अगेन इज एट द स्टेज ऑफ डिस्कशन कि सम फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम सीएपीएफ में भी इंट्रोड्यूस करें। सो इफ दैट हैपेंस देन सीएपीएफ वालों को भी ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, सो साइट ने आपको ब्रीफ किया, देन ही वुड टेल यू वेरियस टेस्ट, और हर एक टेस्ट के कुछ सैंपल भी दिखाएगा ताकि आप रेडी हो जाएं। तो अब एक बार हम देखते हैं क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। इसका नाम कोई नहीं बता पाया, आई गेस ज्यादा मूवी फैंस नहीं है, या मूवी का नाम कौन सा है कमेंट करके बताना, जो लोग देखेंगे बाद में कमेंट करके बताना हु इज दिस हीरो एंड द मूवी। सो फर्स्ट टेस्ट जो इसमें है दैट इज टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इट इज समवॉट सिमिलर टू पीपीडीटी yet slightly different. थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, अगेन परसेप्शन का जो मतलब था वही यहाँ पे मतलब है। परसेप्शन का मतलब क्या था, सबसे पहले देखना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, और थर्ड स्टेज पे उसको इन्फर करना, जो हमने पीपीडीटी के टाइम डिटेल में देखा था। तो परसेप्शन रिमेन सेम। थीमेटिक यानी आपको उसकी जो कोर थीम है, व्हाट इज द कोर थीम, किस वैल्यू के अराउंड वो इमेज बिल्ड हो रही है, उस कोर थीम को पिकअप करना है। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। डिटेल में टेस्ट को डिस्कस करेंगे व्हेन वी वुड बी, आई वुड बी टेकिंग एन एंटायर क्लास, 1-1.5 घंटे की पूरी क्लास टैट पे ही लूंगा, उसमें हम काफी प्रैक्टिस भी करेंगे। बट फॉर टुडे से एक सैंपल मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। सपोज दिस इज द इमेज, आपको ये इमेज दिखाई गई, दिस इमेज वुड बी डिस्प्लेड टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के लिए आपको एक इमेज दिखाई गई जस्ट लाइक पीपीटीटी, एंड अगेन यू वुड बी गिवन 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी ऑन दिस, ठीक है। इस पे आपको 4 मिनट्स में कोई स्टोरी लिखनी होगी इसी इमेज के अराउंड, जैसे आपने पीपीटीटी में लिखी थी स्टोरी, ओके। बट क्या होगा, जैसे ही 4 मिनट्स ओवर होंगे, नरेशन और ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, अनदर न्यू इमेज वुड बी शोन टू यू। तो जैसे ही 4 मिनट्स हुए, नेक्स्ट इमेज वुड बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, एंड अगेन इट वुड बी डिस्प्लेड फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए आपको दूसरी इमेज दिखाई जाएगी। सो ऐसा कब तक चलता रहेगा, इट वुड बी कंटिन्यूड टिल 12 पिक्चर्स। ऐसी आपको 12 विभिन्न तस्वीरें दिखाई जाएगी, और जो लास्ट इमेज होगी आपकी वो एक ब्लैंक स्लाइड होगी, वो एक ब्लैंक स्लाइड होगी, और उसमें जो भी आपके मन में स्टोरी उस समय आती है वो लिख लेनी है, ठीक है। जो कल की टीएटी की क्लास होगी उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये 12 स्टोरीज कैसी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, रटी रटाई स्टोरी ब्लैंक स्टोरी के लिए लेके जाते हैं। अगेन ये भी डिस्कस करेंगे ब्लैंक स्टोरी कैसी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास। आज तो जस्ट मेरे को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। इफ एनीबडी कैन अटेम्प्ट अ स्टोरी ऑन दिस, लेट्स सी कैसा करते हैं, वो कमेंट में लिख के बताना। आई वुड गो थ्रू योर स्टोरी एंड देन फीडबैक करेंगे, ठीक है। सो दिस इमेज आपको दी गई है, 30 सेकंड्स के लिए इमेज दिखी, यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन 4 मिनट्स। देन जैसे ही 4 मिनट्स ओवर होंगे, नेक्स्ट इमेज आएगी, अगेन फॉर 30 सेकंड्स, राइट फॉर 4 मिनट्स, एंड जैसे 12 ऐसा, दिस वुड गो ऑन फॉर 12 इमेजेस, देन वन ब्लैंक इमेज वुड कम, और उस पे जो आपके माइंड में स्टोरी आती है उसको लिखनी है। कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, आई वुड एम्फसाइज ऑन क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। मेरे हिसाब से क्योंकि इमेज थोड़ी धुंधली होती है, तो मैं आपको फोकस करूंगा कि आप क्रिएटिवली इमेज को इंटरप्रेट करें, एंड ट्राई टू बी हैविंग मेंटेन अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब जो एक आपने कंसिस्टेंसी ऑफ योर क्वालिटीज मेंटेन किया, ट्राई टू वही थॉट्स वर्ड्स एक्शंस में जो आपकी क्वालिटीज आ रही है। इसीलिए अगर आपने जो अपनी सक्सेस डायरी बनाई है उसमें अगर कोई सपोज सिमिलर या क्लोजली रिजेंबलिंग कोई इंसिडेंट ऐसा है, then it would again help you in writing your story confidently without any much issues. Also try to be action oriented. These images have to be, but ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब ये कल यार टेस्ट डिस्कस करूंगा, no point discussing it now. But this is the scenario of the TAT. So एक important चीज यहाँ पे कि जो आपकी हैंड स्पीड है वो प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज फिर अगर मान लो ठंडियों में एसएसबी पड़ गई तो हाथ ही नहीं चलेगा, या लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, कीबोर्ड वॉरियर ही हो, तो फिर अगेन वहां पे दिक्कत आएगी। हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये भी काफी लोग पूछते हैं। इट शुड जस्ट बी लेजिबल। मतलब मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत खराब थी, आई कुड गेट रिकमेंडेड विद गुड स्कोर्स, दैट मींस किसी कोई भी रिकमेंड हो जाएगा, बिकॉज माय हैंड राइटिंग इज लिटरली पैथेटिक, जो आप सबको पता ही है, ठीक है। पीपीडीटी का होमवर्क देख लिया शिवांगी, यूट्यूब पे जिन्होंने कमेंट करा उनके उस पर मैं अभी रिप्लाई करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। लेकिन उसके बाद भी एसएसबी वाले इतने जालिम हैं कि आपको रेस्ट नहीं देते, कि बच्चा थक गया है, हाथ थक गया है, थोड़ा आराम दे दे, नहीं, दे डोंट गिव यू रेस्ट। बोलते हैं जितना रगड़ा उतना तगड़ा। सो सेकंड टेस्ट तुरंत स्टार्ट करवा देते हैं, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
इसमें क्या होता है, आपको एक शब्द दिखाया जाता है और 15 सेकंड्स, और फिर आपको उस पर सेंटेंस बनाना होता है, एक सेंटेंस बनाना होता है। तो ये भी अगेन एक सैंपल आपको दिखाया, जैसे वर्ड आया बॉम्ब, यू आर गिवन 15 सेकंड्स टू मेक अ सेंटेंस ऑन इट। और ऐसे कितने वर्ड्स होते हैं, यू आर गिवन 60 वर्ड्स, एक के बाद वर्ड्स आते रहते हैं स्क्रीन पे, यू कंटिन्यूअसली हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दैट वर्ड। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें वर्ड को कैपिटल लिख देते हैं, बॉम्ब अंडरलाइन कर देते हैं, ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम मिनी मिनी चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज इस टेस्ट पे भी एक पूरी सेपरेट क्लास करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे, कैसे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, कैसे वर्ड के थ्रू हम वैल्यू शो कर सकते हैं अपनी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज, करंट अफेयर से कैसे लिंक कर सकते हैं। एसेंशियली मैंने जो आपको एक ब्रॉड थीम बताई जो साइकिल इंपॉर्टेंट है, शो योर पर्सनालिटी, मतलब पर्सनालिटी ट्रेड्स को हाइड नहीं करना है, ट्राई टू बी एज मच एक्सप्रेसिव एज पॉसिबल। ऐसा नहीं करना कि आप हाइड कर रहे हो अपने इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, यू हैव टू डिस्प्ले देम। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स अवॉइड करने चाहिए इसमें, जैसे बॉम्ब है तो आप लिख दो सपोज न्यूक्लियर बॉम्ब was exploded at Hiroshima and Nagasaki. Again, it is just a factual statement, doesn't express any quality of yours. और हमें याद रखना है, all of these balls are full tosses. ये जो भी balls आ रही हैं ये सारी full toss है मान लें, because the canvas is open for us. We can express absolutely any quality. तो इनको factual statements के साथ waste नहीं करना है। Factual statements essentially show कि यार तुम अपनी personality दिखाना नहीं चाहती, आप evasive हो, ठीक है। सो अगेन दैट इज नॉट समथिंग दैट इज अप्रिशिएटेड। सो अवॉइड टू मेनी फैक्चुअल, अब जहां कुछ नहीं आ रहा वहां फैक्चुअल लिख दे चलेगा। अवॉइड टू मेनी न्यूट्रल स्टेटमेंट्स, मतलब जहां पे आप कुछ अपनी क्वालिटी एक्शन डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, अगेन ट्राई टू अवॉइड सच स्टेटमेंट। जैसे आप बोलो, अच्छा इंडिया हैज एक्वायर्ड, सपोज वो कौन से बॉम्ब थे, स्पाइस बॉम्ब्स, इंडिया हैज एक्वायर्ड स्पाइस बॉम्ब्स फ्रॉम इजराइल एंड दे आर बीइंग यूज्ड इन इंडियन एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो अच्छा मुझे बताना ये स्पाइस बॉम्ब की, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ये जो स्पाइस बॉम्ब है ये न्यूज में क्यों थे, व्हाई वर दीस स्पाइस बॉम्ब्स इन न्यूज, ठीक है। सो ऐसे न्यूट्रल स्टेटमेंट भी जो कोई वैल्यू एक्सप्रेस ना करे, दे आर जस्ट शोइंग यू आर गुड एट योर करंट अफेयर्स। अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अवॉइड टू मेनी न्यूट्रल स्टेटमेंट्स। हाँ एक दो स्टेटमेंट में अगर आप करंट अफेयर्स की नॉलेज दिखा दो, दैट अगेन इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट। Most important thing is express yourself, don't hide your personality, don't hide behind the curtains of facts. So this is clear. हाँ तो लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने बोला ना करंट अफेयर्स में अगर कोई चीज है जैसे स्पाइस बॉम्ब आ गया उसको लिख सकते हैं, बट अगेन नॉट फॉर ऑल द वर्ड्स, की कोई भी वर्ड आया तो उसको करंट अफेयर से लिंक करने लगे। जो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए एक इमेज देख के, दैट शुड बी यार मेरी सक्सेस डायरी में क्या इस इमेज या इस वर्ड से रिलेटेड कोई चीज थी, और अगर आपने अपनी सक्सेस डायरी 4-5 बार पढ़ी होगी, यू वुड डेफिनेटली नो इट, ठीक है। ओके नहीं, अगेन दैट ऑल इज, ये सब मार्केट में फैलाई गई मिथ्स हैं कि वैट इंपॉर्टेंट नहीं है, टैट और एसआरटी ही इंपॉर्टेंट है, वैट तो चेक भी नहीं होता। अगेन डोंट फॉल फॉर ऑल दोस मिथ्स, इट इज द असेसर। मैंने जैसे बोला इंडिविजुअल टेस्ट से ज्यादा वो जो एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाएगा साइकोलॉजिस्ट आपकी, उस पर डिपेंड करता है। सो वो वैट, अगर उसको सपोज उसने वैट देखा, टैट किया और एसआरटी किया, अब उसने सपोज आपके टैट और एसआरटी के रिस्पॉन्स देखे, उसके बेसिस पर उसको डाउट आया कि यार ये क्वालिटीज तो इसमें जम रही है लेकिन ये क्वालिटी नहीं जम रही, देन ही वुड आल्सो हैव अ लुक एट योर वैट आल्सो कि अच्छा यहाँ पे भी ये क्वालिटी मिसिंग है, और उसको अगर तीनों ही जगह ये क्वालिटी मिसिंग नजर आई, देन ही वुड अगेन रेज अ क्वेश्चन मार्क एंड यू वुड अगेन बिकम अ डाउटफुल कैंडिडेट या डी कैंडिडेट। ओके सो अगेन अंडरस्टैंड ये सारे सेप टेस्ट ऑल्दो सेपरेट है, कल मैं इस पे और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वैट, टैट, एसआरटी, ऑल्दो ये सारे टेस्ट आपको सेपरेट टेस्ट लग रहे हैं, बट अंडरस्टैंड अल्टीमेटली साइकोलॉजिस्ट के लिए ऑल ऑफ दिस इज जस्ट वन टेस्ट, एंड ऑन द बेसिस दीज आर जस्ट वेरियस स्टेजेस जिसके बेसिस पे वो अपने माइंड को फ्रेम करेगा ऑन ईच ऑफ द कैंडिडेट की कंसिस्टेंसी क्या आ रही है, कौन सी क्वालिटी अक्रॉस द टेस्ट दिख रही है, कौन सी क्वालिटी किस टेस्ट में नहीं दिख रही। ये मैं डिटेल में कल के सेशन में जब साइक के स्पेसिफिक सेशन स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करूंगा, बट सफाइस इट टू से दैट ऑल द टेस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वी शुडंट थिंक कि एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं, ठीक है। ओके ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर कि ये मिथ सबसे पहले ब्रेक होनी चाहिए कि एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या मिलती है आपको, बुकलेट मिलती है,
और उस बुकलेट में कुछ सिचुएशन होती है. सपोज यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड अ शैडो अपीयर्स बिहाइंड यू डैश. सो कोई भी एक सिचुएशन दी होगी, उसके आगे डैश दिया होगा, आपको उसको फिल करना होता है. सो ऐसी 60 रूटीन लाइफ सिचुएशंस होती हैं एंड यू आर गिवन 30 मिनट्स. So essentially 30 seconds for each situation, but again since you don't have a watch, you sometimes मतलब भावनाओं में बह जाते हो और फिर एक ही एसआरटी को लिखने में आप 1.5 मिनट लगा देते हो. सो मैनेजिंग टाइम इज ऑफ एसेंशियल. 60 सिचुएशंस है, 30 मिनट्स दिए जाते हैं. सो एक तरीके से ये दोनों चीजों को टेस्ट करता है कि आप कितना तेज सोच पाते हो. एजिलिटी ऑफ योर माइंड, हाउ क्विक इज योर थॉट प्रोसेस, एंड एजिलिटी ऑफ योर हैंड, कितना तेज आप लिख पाते हो. बिकॉज एक तो हाथ बहुत ज्यादा दुख जाता है. सिंस यू हैव बीन राइटिंग थ्रू आउट द डे, हाथ बहुत दुख जाता है. सो दोज हु आर नॉट इन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ओनली. दैट कीप राइटिंग रादर देन टाइपिंग. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट इट इन पेन एंड पेपर, क्योंकि जो आपका एसएसबी होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन ऑन पेन एंड पेपर. तो रादर देन पीपीटीटी टैट आप टाइप करके लिखो, राइट देम विद पेन एंड पेपर. उससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर होती है. हैंड राइटिंग थोड़ी थोड़ी लेजिबल होने लगती है और छूटता नहीं है. एसआरटी में तो आई हैव सीन कि बहुत, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट. दिस हैपेंड विद मी टू आल्सो. आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट. द रीजन वाज अगेन माय राइटिंग स्पीड वाज स्लो. सो क्या सारे के सारे करने चाहिए? आई वुड एडवाइज इफ यू आर अ फ्रेशर देन यू कैन हैव सम लिबर्टी. मतलब सारे नहीं भी हो पाए तो भी चलेगा. ही वुड जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द वंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड. बट इफ यू आर अ रिपीटर देन तो यार मस्ट है कि you should try to complete the 60, because then again if you are leaving a few of them, it would give a wrong signal to the assessor कि यार ये दोबारा से आया and still he is not able to do complete justice to the testing procedure. So if you are a repeater then you must solve the 60, all the 60 ones. ठीक है. टेस्ट एसेंशियली आपकी थॉट प्रोसेस कितना तेज है और हैंड राइटिंग कितनी तेज है उस पर डिपेंड करता है एसआरटी की परफॉर्मेंस. सैंपल हमने देख लिया एसआरटी का कैसा होता है. ओके, एनी डाउट टिल नाउ? इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज लेट मी नो. फाइनली जो इसका लास्ट टेस्ट है, दैट इज अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. इसमें आपको एक फॉर्म टाइप का दिया जाता है. उसमें आपको कुछ पैराग्राफ्स बनने होते हैं. मतलब 15 मिनट्स में यू हैव टू फिल 5 पैराग्राफ्स. Essentially what your parents think about you, what your teachers think about you, what your friends think about you, what is your self opinion about yourself, what qualities do you want to inculcate in yourself, या जो qualities आपको missing लगती है अपने में. तो essentially इसमें आपको खुद को describe करना होता है. what do you think that your parents think about you. okay, जैसे वो होता है ना कि you think that this girl likes you, तो आप सोच रहे हो कि वो लड़की आपके बारे में क्या सोच रही है. ठीक है, जो होता है ना, she loves me, she loves me not, she loves me, she loves me not, वही चीज होता है. ये पेरेंट है, तो आप हो नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. सेम चीज आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, तो उसी फंडे को आपको लगाना होता है यहाँ पे और फिर डिस्क्राइब करना होता है कि क्या वो सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं. इसको भी क्या, इसका डीपर इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन और पीआईक्यू का सेशन करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. किस कुछ चीजों पे ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे. शो योर स्ट्रेंथ्स, हाइड योर वीकनेसेस. इस प्रिंसिपल को यहाँ यूज करना है. यानी क्या, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली डिस्प्ले करो कि पेरेंट्स भी मुझे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, टीचर्स भी मेरे को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंसिडर करते हैं, फ्रेंड्स भी मेरे को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं, और मैं भी खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानता हूं. अब सपोज यहाँ आपने लिख दिया कि पेरेंट्स समटाइम्स थिंक दैट आई एम नॉट पंक्चुअल. तो आपने सपोज एक एक क्वालिटी, पर उसको फिर आपको जस्टिफाई करना, दैट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दिस क्वालिटी बाय फॉलोइंग द पोमोड्रो टेक्निक. और यहाँ जो भी आप क्वालिटी बोल रहे हो कि आप इनकलकेट करना चाहते हो, जस्ट उसमें एक लाइन चिपका दो कि हाउ यू आर ट्राइंग टू डू दैट. अगेन इट वुड बी अ गुड आइडिया टू इंक्लूड कि हाउ यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट दैट क्वालिटी, रादर देन जस्ट मेंशनिंग कि आप इस क्वालिटी को इनकलकेट करना चाहते हो. ऑल्सो कोई वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एब्सोल्युटली ओएलक्यूज के अगेंस्ट चली जाए. मतलब इफ यू आर राइटिंग पंक्चुअलिटी, ट्राई टू शो कि व्हाई यू गेट डिलेड, बिकॉज समटाइम्स स्पोर्ट्स में आपको ज्यादा टाइम चला जाता है, यू कीप ऑन प्लेइंग द गेम, इसलिए आप घर पे कई बार लेट हो जाते हो, या स्कूल पहुंचने में कई बार इसलिए लेट हो जाते हो बिकॉज
you have to go to your coaching class, and then after the coaching class the distance is more, so that's why sometimes you get late, but now you are trying to reschedule these things. ठीक है, so जो आपकी वीकनेस है उसको एक तो मिनिमाइज करना है, दूसरा कोई वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं किसी को देखता हूं तो फिर मैं जेलस फील कर जाता हूं, या ऐसी वीकनेस नहीं लिखनी है आपने कि वीकनेस मेरी ये है कि दैट आई एम अ बिग स्पेंड्रिफ्ट, या मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं लिखनी है। जैसे स्पेंड्रिफ्ट लिख सकते हो, यू कैन राइट कि आई एम हैविंग अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, उसकी वजह से कई बार मैं अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाता। सो दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो मैं अपनी हेल्थ हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, अपनी स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। सो जो क्वालिटीज में कोई ऐसी नहीं लिखनी कि मैं बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन हूं और अब मैं ऑनेस्ट बनना चाह रहा हूं। सो अगेन दैट वुड अ स्ट्रिक्ट नो नो है इस काइंड ऑफ क्वालिटी। जैसे मैं बहुत ही लेजी इंसान हूं, मैं बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं हूं और मैं इस पे इंप्रूव करना चाह रहा हूं, अगेन इट इज अ बिग नो नो। ठीक है, हर एक साइक टेस्ट की सेपरेट क्लास करेंगे। ओके, सो हर एक साइक की सेपरेट करेंगे ताकि आपको इन डेप्थ पता लग जाए कि हर एक टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब ये इसीलिए बोल रहा हूँ ये कंप्लीट कोर्स है, मतलब अगर आप पेड कोर्स भी लोगे कहीं, आई डोंट थिंक दे गिव यू सो मच कंटेंट, दिस इज लाइक अ कंप्लीट एंड टू एंड कवरेज, बट ओनली थिंग इज आई वुड बी एबल टू सस्टेन दिस ऑलरेडी। इसका एडवांटेज तभी आप लोग ले पाएंगे, आई वुड बी कंटिन्यूइंग दिस बिकॉज आई ऑल्सो हैव अदर एंगेजमेंट्स। सो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी इट वुड कंटिन्यू, अदरवाइज सॉरी आई वुडंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस फर्दर। ठीक है, तो प्लीज शेयर करना है सबने, इफ यू डोंट लाइक देन डोंट से कि फिर सर ये आगे कंप्लीट क्यों नहीं हो पाए। सो आप अगर पेड कोर्स भी करोगे इन ऑल दोस ब्रांडेड कोचिंग्स, वहां भी शायद इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट तो साइक हो गया, 225 मार्क्स का आपका टेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज योर जीटीओ टेस्टिंग। तो आज साइक पे काफी डिटेल में डिस्कस किया है अभी, अब कल से साइक के हर एक टेस्ट करेंगे। जीटीओ में एसेंशियली बोलूं तो क्या होता है, जीटीओ में 3 काइंड ऑफ टेस्टिंग होती है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ को बोला जाता है, जो आपकी ग्रुप परफॉर्मेंस चेक करता है कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सो जीटीओ के साथ ही बच्चों को काफी ज्यादा मजा आता है, बिकॉज जीटीओ इज द पर्सन जिसके साथ आप पूरे 2 डेज स्पेंड करते हो। बाकी सबके साथ यू स्पेंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इंटरव्यूअर के साथ 40-50 मिनट, हाफ अ डे विद साइक, बट जीटीओ के साथ आप पूरे 2 दिन बताते हो। तो जीटीओ कैन नो योर इन एंड आउट वेरी इजिली। सो जीटीओ में एसेंशियली हम 3 तरीके के टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट इज द बेसिक सीरीज टेस्ट, दैट इज जस्ट टू डेवलप अ इनिशियल आइडिया, मतलब पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। अगर जिसने ये बेसिक सीरीज में जादू कर दिया तो तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ठीक है, सो बेसिक सीरीज में जिसने जादू कर दिया पहली नजर में, देन दे बिकम वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर रिकमेंडेशन। सो बेसिक सीरीज की टेस्टिंग होती है। देन देयर इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। सो हो सकता है पहली नजर में धोखा खा गए हो, इंस्टाग्राम पे फोटो देखी तो दिल में स्पार्क्स पैदा हुए, बट फिर रियल लाइफ में मिले तो कुछ और ही मिला। तो ये कंफर्म करने के लिए कि बेसिक सीरीज में जो इंप्रेशन बना है वो सही है या नहीं, उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद एक फाइनल बार, आखिरी बार, चलो डील पक्का करने से पहले एक आखिरी बार और देख लें, तो फाइनल ग्रुप टास्क होता है। सो एसेंशियली जीटीओ सीरीज के अंदर ये 3 स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग होती है। फर्स्ट इज योर बेसिक सीरीज टेस्टिंग, देन योर कंफर्मेटरी टेस्टिंग एंड देन योर फाइनल ग्रुप टास्क। अब इन सीरीज ऑफ टेस्टिंग के अंदर भी काफी सारे टेस्टिंग होती है। जैसे बेसिक सीरीज की बात करूं तो इसके अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका इसके अंदर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी। फिर जैसे कंफर्मेटरी टेस्टिंग के अंदर आपकी काफी सारी चीजें होंगी, लेक्चरेट होगी। आपकी कंफर्मेटरी टेस्टिंग के अंदर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा। देन फाइनल ग्रुप टास्क के अंदर आपका फाइनल जो ग्रुप टास्क होता है वो होगा। सो ऑल दीज टेस्ट ये क्या है, इनमें कैसे परफॉर्म करना है, दैट वी वुड बी सब्सटेंशियली कवरिंग ईच ऑफ देम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हर एक टेस्ट का भी। बट सफाइस इज टू से कि ये जो जीटीओ टेस्टिंग है, इट इज एसेंशियली टेस्टिंग की जो भी आपने क्वालिटीज अपने थॉट्स और वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, आर यू एबल टू ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। तो जो भी आपके वर्ड्स और एक्शंस हैं, क्या वो कंसिस्टेंट है आपस में, जो आप सोच रहे हो कि आप उसको एक्चुअली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर पाते हो। बिकॉज सम ऑफ द टास्क हियर वुड बी आउटडोर टास्क, सारे टास्क यहाँ इंडोर नहीं होते, मेनी ऑफ द टास्क आर आउटडोर। तो वो सब आप जो फट्टी बल्ले की कहानियां सुनते हो, रस्सी की कहानियां सुनते हो, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ टेस्टिंग सीरीज। सो दैट इज देयर।
इन द जीटीओ। तो जीटीओ में कैसे परफॉर्म अच्छा करना है, अंडरस्टैंड कि वही एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी टॉप नॉच। तो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है उनको यार इस पे वर्क करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल से भी मेरा स्पेसिफिक मतलब है यू शुड हैव बोल्डनेस इन वॉइस, मतलब दमदार होनी चाहिए। देन यू शुड हैव गुड आर्टिकुलेशन, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए, जो मन में है वो शब्दों में बयां हो सके, ठीक है। ओके, देन यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, it leaves a very good impression if you have good command over language. Okay, so and then some amount of knowledge also plays a part, if like in group discussion gp if you have some knowledge. And so communication skill is the first part जो आपको GTO के लिए बहुत ही जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो GTO पे है दैट इज एग्जीक्यूशन। जो भी आपका थॉट है आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हो। बीट सपोज जीपी जब हम देखेंगे तो आपने जो थॉट्स फ्रेम किए थे, जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया था, आर यू एबल टू एग्जीक्यूट देम ऑन द ग्राउंड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इसमें क्या आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर पाते हो या नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप बना पाते हो या नहीं, ऑल ऑफ दैट इज अगेन चेक। तो प्रैक्टिकलिटी, एग्जीक्यूशन, these play a very important role in your GTO. तो GTO पे कैसे परफॉर्म करना है, we would be doing a separate session on that. Also we do host these वर्दी talks. So essentially इसमें हम कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं who are worthy of wearing a वर्दी। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें वर्दी मिले, हम वर्दी पहने, बट आई बिलीव वर्दी पहनना ना पहनना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक चीज है, दैट इज टू बिकम वर्दी, टू बिकम पात्र बनो और यूनिफॉर्म अपने आप आएगी। दैट इज द आइडिया, ठीक है। डोंट रन आफ्टर द रिजल्ट, रन आफ्टर द प्रोसेस। सो यहाँ पे हम उन लोगों से बात करते हैं दोज हु आर वर्दी, जो काबिल है एंड इवेंचुअली दे गॉट देयर वर्दी। सो उनकी जर्नी पे डिस्कशन करते हैं। आज उसका पहला एपिसोड वी आर मेकिंग इट लाइव ऑन यूट्यूब, सो यू कैन गो एंड हैव अ वॉच इट। ये सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग है। सो जिसको भी मोटिवेशन लो फील होता है, इफ यू आर फीलिंग लो ऑन मोटिवेशन की मेरी जिंदगी में बहुत ही समस्याएं हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता और भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, जस्ट गो एंड दिस सेशन, गूज़बम्प्स गारंटीड। इतना मोटिवेशन ऑल्सो फॉर गर्ल्स हु थिंक कि यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाएं कैसे रेजिस्टेंस है, जस्ट गो एंड वॉच दिस सेशन, यू वुड बी माइटिली impressed by this story. So just go and watch Leela ma'am's वर्दी talk that I did with her. It would be available on YouTube. YouTube पे जाके वर्दी talks को आप देखोगे, you would be able to find this session. ऐसे काफी सारे और भी सेशंस हैं, so इसको भी आप शेयर कर देना अपने ग्रुप पे, ठीक है। MKHD का जब मैं सेपरेट सेशन करूंगा तब आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल नंगा होकर नहाऊंगा, तिरंगे को फैलाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, अगेन दैट ऑल वी वुड बी डिस्कसिंग जब इंडिविजुअल टास्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वर्दी टॉक्स, इट वुड बी गोइंग लाइव राइट नाउ। तो यूट्यूब पे जाके वर्दी टॉक्स की इसका लिंक भी यहाँ पे पड़ा होगा, यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट स्ट्रीम एंड सपोर्ट इट, ठीक है। फाइनली लास्ट स्टेज जो होती है दैट इज इंटरव्यू। तो जीटीओ के 225 मार्क्स हो गए, उसके बाद इंटरव्यूअर होता है, अगेन ही इज हैविंग 225 मार्क्स। सो इंटरव्यू यूजुअली इज अ फॉर्मल इंटरव्यू है क्या, एसेंशियली इट इज अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ पर्सन हु इज चेकिंग योर सूटेबिलिटी फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। उसका इंटरव्यूअर को सैलरी इस बात की मिल रही है कि वो चेक करे आपकी सूटेबिलिटी फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। कई लोग क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, वो समझते हैं इंटरव्यूअर बोलेगा भी ऐसे कि यू कैन बी फ्रेंडली विथ मी, यू कैन शेयर योर इनर मोस्ट थॉट्स, ऐसा ऐसा। ऑलवेज कीप कि बुलाएगी मगर जाने का नहीं, बिकॉज ही इज नॉट योर फ्रेंड। सेम विद द जीटीओ, वो कहेगा वो सिगरेट पी रहा है, आपको देगा कि सिगरेट पी लो, अगेन अंडरस्टैंड he is not your friend, he is army's friend. So maintain that distance and keep your answers crisp. Don't talk loosely in front of him or her, ठीक है। Okay, so he is army's friend, not yours. So don't become too casual कि अरे हाँ सर, चलो जीटीओ ने कहा कि लो बेटा एक पफ तुम भी मान लो, अरे हाँ सर मैं भी एक कश तो ले लूं, ठीक है। सो डोंट बिकम कैजुअल, दैट इज अ श्योर शॉट वे टू रिजेक्शन।
एसएसबी गेट के बाहर रिजेक्ट होने का सबसे इजी तरीका है बिकमिंग कैजुअल विद देम. रिमेंबर दे आर आर्मीज फ्रेंड नॉट योर्स. ठीक है. सो और डिस्कशन क्या होता है एसेंशियली, ये जब हम इंटरव्यूज प्रैक्टिस करेंगे तब मैं बताऊंगा देयर आर सर्टेन फ्रेमवर्क जो फॉलो करते हैं. एसेंशियली आपका एवरीडे एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपकी फैमिली फ्रेंड सर्किल कैसा रहा है, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, हॉबीज कहाँ से रही है, आपकी जनरल अवेयरनेस डे टू डे अपडेट्स को लेके कितनी नॉलेज है, एंड फाइनली मिलिट्री के बारे में इफ यू हैव अ बैकग्राउंड और इफ यू आर इंटरेस्टेड व्हाट डू यू नो अबाउट द फोर्सेस, इट्स वेरियस फॉर्मेशंस स्ट्रक्चर्स, एनी अपडेट्स दैट हैव हैपेंड इन द मिलिट्री एप्टीट्यूड पे थोड़ा डिस्कशन होता है. सो फ्रेंड सर्किल, अपनी फैमिली, अपनी एजुकेशन, हॉबीज पे थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, कहाँ को बिलोंग करते हैं, उस पे जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, एंड फाइनली मिलिट्री में क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या बेसिक नॉलेज आपको मिलिट्री की होनी चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट इज चेक्ड अगेन इन द इंटरव्यू. सो कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है वी वुड बी गोइंग इन डिटेल. ठीक है. फट्टा बल्ली क्षितिज जब जीटीओ टेस्टिंग करेंगे उसमें डिटेल में फट्टा बल्ली को किसके कहाँ डालना है वो तब देखेंगे. ठीक है. So don't worry, all of that is going to be covered in the GTO classes, provided you give guys support to the series. ठीक है. So finally last day comes, so 225 marks आपके इंटरव्यू के भी हो गए, 39 मिनट के बेसिस पे 225 मार्क डिसाइड हो जाते हैं. फाइनली लास्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस का. सो कॉन्फ्रेंस उस एसएसबी बोर्ड का जो भी प्रेसिडेंट होता है he sits in the middle, then other officers sit in a U-shaped structure. यहाँ पे एक फ्लैग लगा होता है so that you know this person is the president. You enter from here and you stand before the president, you greet the president and the other officers sitting there, all of them are in their uniform. So कई बार बच्चे यही इंटिमिडेट हो जाते हैं. अगेन कॉन्फ्रेंस किन के लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव सीन. इंपॉर्टेंट तो सबके लिए बट ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए दोज हु आर द बॉर्डर लाइन और द डाउटफुल कैंडिडेट, बिकॉज उनके लिए इट इज द मेक और ब्रेक सिचुएशन. So those essentially जिनका अभी तक का score in the previous 3 tests has been between 240 and 270. Again, you don't know your score, so the idea that you can keep in mind is कि अगर मेरे को कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद थोड़ा ज्यादा टाइम वेट करना पड़ा vis-a-vis other candidates, that means I am in the borderline and I have to put my best fit forward. इसका मतलब ये नहीं कि जो एकदम ही तुरंत जिनको बुला लिया वो फिर एकदम कैजुअल होके जाए. Again, they also have to maintain that decorum of the place. ठीक है. So again, if you are in the conference and if you think you are a borderline candidate, be very very confident. सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस. ये मैं अगेन कॉन्फ्रेंस का जो सेपरेट एक क्लास होगा उसमें डिस्कस करूंगा. वेरी वेरी कॉन्फिडेंट होके जाना है वहां पे. दूसरा, ट्राई टू एंश्योर कि जो आपकी वीकनेस रह गई थी, सपोज आपको जीटीओ ने कोई क्वेश्चन पूछा था वहां और आप उसका आंसर नहीं दे पाया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कोई आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आप आंसर नहीं दे पाए, एंश्योर दैट यू हैव looked up that question or answered that, seen that somewhere. Again, it would show that you were eagerness दिखाएगा to get into the forces. Then also if you are not able to perform well in a particular task और एक particular quality आपको लगता है यार ये मुझसे डिस्प्ले नहीं हो पाई, ensure that you are able to display it in this session. Suppose वहां पे आप नहीं दिखा पाए that you are a quick thinker, you are not able to take quick decisions, then try to ensure कि वहां पे आपके आंसर्स ऐसे निकले that shows your spontaneity. Okay, or whether you think कि यार communication skills वहां नहीं दिखा पाए, try to ensure that you do not you are not jittery while you are speaking. Try to ensure that you are coming out as a very eloquent person there if you have not been able to show your communication skills well in the previous part. ठीक है. So conference बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर द बॉर्डर लाइन. तो एंश्योर कैसे अच्छा करना है, एंश्योर करना है जो पीछे कमी रह गई उसको यहाँ सुधार करें, और अगर कोई आंसर पहले नहीं दे पाए तो उसका आंसर ढूंढ के जाएं कॉन्फ्रेंस के टाइम पे. और भी काफी सारी चीजें कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, व्हाट यू शुड डू, हाउ यू शुड ग्रीट, ऑल ऑफ दैट वी वुड बी डिस्कसिंग व्हेन वी आर टेकिंग द सेपरेट सेशन. फाइनली फिर कॉन्फ्रेंस के बाद फॉलन होता है एंड द ऑफिसर कम्स एंड देन दे अनाउंस चेस्ट नंबर्स. दोज हु are called out, they are recommended usually, and then others are given a message ki they also performed well, might be a few lacunas here and there, they can work upon it and move accordingly. जो recommend हो जाते हैं फिर उनको रिक्वायर जाता है उनसे काफी सारे फॉर्मेलिटीज, फॉर्म वॉर्म, सर्विस बुक, ये सब भरवाया जाता है एंड उनको लेटर मिलता है, वो प्लस का साइन मिलता है, फिर उनको बुलाता है यू हैव टू प्रोसीड टू योर मेडिकल बोर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So all of that happens. That's a very proud feeling. कई लोग फोटो भी खिंचाते हैं वहां पे. Okay, so क्लोजिंग एड्रेस में एसेंशियली जो होता है उसके बाद वहां पे वो बताते हैं कि हम क्या क्या क्वालिटीज देख रहे थे, और फिर वो एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वही जो
स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स को बताते हैं कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी पूछते हैं. एंड they ask you if you have any suggestions also. So ये आपका कॉन्फ्रेंस में भी होता है. They would ask you कि how was your stay, what did you like, is anything that we can improve upon. So इनके क्या आंसर्स होने चाहिए, we would be discussing. कोई सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो डाउटफुल कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, all of that we would be discussing. So president, deputy president and others are also in the boardroom, and your assessors also, your GTO, your psych, your IO, all of them are also sitting here. ठीक है. That happens at the conference. Finally, results are declared and you are either recommended or you are asked to come back. ठीक है. Okay. It wouldn't be an issue, Yogesh, provided you are able to justify those things. So any doubt you have now, please post it in the comments and I would have a look at it. अगर अभी भी कोई doubt है आपको in today's class, you can ask it in the comments. I would try to respond. Also, make sure that you have watched the previous classes to extract maximum benefit from today's class. आज की क्लास से सबसे ज्यादा बेनिफिट तभी होगा अगर आप in a continuity ये पूरी सीरीज देखेंगे, because all the classes are interlinked to each other. So ensure that you have watched the previous 4 sessions along with this. Finally, आप में से जो लोग कैप्टन तिरंगा का इंतजार कर रहे थे, कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा इज कमिंग बैक. हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबका बदला लेगा तेरा तिरंगा. एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको इसमें हम कवर करेंगे. सिर्फ एमसीक्यू की नौटंकी नहीं करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट भी स्टडी करेंगे. And it is a completely free series. Those of you who have already watched it know its value. It would be starting from 20th February, 9 p.m. से we would be doing it. 9 p.m. 20th February would be the first session. So I would urge you to please share the session with all your friends so that we can take this forward. ये तभी successful हो पाएंगे and would be able to complete all of these initiatives only if you guys give your love and support to the series. So please share the message. और अभी YouTube पे we have live the Vardi talks with Leela ma'am. Go and watch that as well. So that's all from my side. It's Akshay Badola signing off. Bye bye. Jai Hind. Thanks a lot for watching the session.